Namaskar. Welcome everyone to this session on emotional wellness and immunity. I'm very happy to have an eminent social worker, healer, writer, Dr. Anand Nadkarni ji with us, whose work is not something that is unknown to any one of us. He is one of the leading psychiatrists based at Thane, Maharashtra, and he runs an amazing organization called Institute of Psychological Health. Dr. Nadkarni is a leading expert on psychological and emotional wellness and therapy. Through his NGO, Institute of Psychological Health, his services range from giving care to individuals, operating support groups, and continuous educational projects to a telephonic helpline, Maitra, and community projects like Jidnyasa for adolescent sensitization, VED, which is the abbreviation of Vocational Education, Direction and Harmony, Muktangan, De-Addiction Center. He's mentoring young artists, athletes, players, singers to optimize their performances. Dr. Nadkarni has also written more than 17 award-winning books in Marathi. Many of them have been translated in English as well as adopted to the Braille language. Let me welcome Dr. Nadkarni. I'm very happy to receive your consent to be talking to us about the growing crisis that we are going through with respect to the changing scenario, and more so with respect to the recent crisis of COVID-19. And we are all aware that these are newer challenges for which, while we are taking a lot of precaution, we are keeping ourselves aware and awakened. We are exercising all kinds of precautionary measures to fight COVID-19 and work in whatever way, in the best way that we can. We are now talking about the new normal, which is working through whatever digital platforms we are able to work with. So with all these new, uncertain and unexpected changes in our lives, there is also something that remains important, and that is about immunity. And when I say immunity, it's not just the physical or the physiological immunity to keep ourselves fit, but emotional immunity. So to begin with, Dr. Nadkarni, please can you highlight and tell us something about what is this concept of emotional immunity? Uh, can you uh, can you unmute your mic, please? So very good evening to viewers and very good evening to you, Parvati. It's a great opportunity for me to have this dialogue on the platform of Mahagami, such a creative and prestigious institute that has been functioning in the field of performing arts. Now you are asked about immunity. Now let's understand that the physical immunity and emotional immunity are both linked functions. So see, the nature has not made man's body and man's mind as different. So जो भी हमारे emotions है, वो emotions का कितना असर होता है हमारे शरीर के ऊपर, तो
साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए इस इम्यूनिटी के ऊपर. I'll share one experiment with you. So there were medical students appearing for examinations, और उनका एक बाजू से इमोशनल मैपिंग किया गया कि किसमें कितनी एंजाइटी है. और अच्छा. दूसरे बाजू से उनको जो कॉमन कोल्ड का वायरस है उसका इन्फेक्शन दिया गया. और हाँ, और इसमें ऐसा लगा कि जिनकी एंजाइटी ज्यादा थी, परफॉर्मेंस एंजाइटी, एंड दैट इज वेरी रिलेटेड टू व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक, बिकॉज स्टूडेंट को भी परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है कि मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या होगा जी. जिनमें परफॉर्मेंस एंजाइटी सबसे ज्यादा थी जी. उनमें कॉमन कोल्ड का एफ्लिक्शन सबसे ज्यादा हो गया. और जिन लोगों में परफॉर्मेंस एंजाइटी कम थी उनमें एक तो कोल्ड हुआ नहीं, और अगर हुआ भी तो उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी काफी कम रही. सो scientists found out a very interesting fact that the emotion can have an impact on the immunological white cells. हाँ, तो हमारी ये टी सेल्स कैसे बिहेव करेगी वो भी टू एन एक्सटेंट इमोशंस के ऊपर होता है. तो सिर्फ विटामिन सी लेना भी ठीक है, और आपका संतुलित आहार और व्यायाम ये सब तो अपनी जगह पे ठीक ठीक ही है, लेकिन उसके साथ में ये इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा एक आपको मिसाल देता हूँ, वो भी वायरस का ही है जी. HIV वायरस के ऊपर जो अनुसंधान हुए, जो भी रिसर्च हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा देयर आर 4 थिंग्स इन HIV वायरस, दे सेड, व्हिच आर इक्वल वेटेज. तो उसमें डाइट एंड एक्सरसाइज, इसको वेटेज गया, दैट इज अंडरस्टैंडेबल. थर्ड वाज सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, and fourth was emotions, equal weightage 25% for immunity. So what is very important is why so much importance is given, because जो आपको होना है, जो घटित घटना है, उसके ऊपर बहुत बार आपका कुछ कंट्रोल या नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन उस घटना को आप किस नजरिए से देखेंगे उसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है. एंड दैट पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी. हाउ डू यू लुक एट द थिंग्स? यू विल सी दैट इवन इन द सो कॉल्ड फिजिकल डिसऑर्डर्स सच एज कैंसर. कैंसर का निदान हो जाता है 2 पेशेंट्स में, और एक पेशेंट जो है जिसका पर्सपेक्टिव उसको देखने के लिए ये होता है कि अभी चलो ये डेथ ही हो गया, ये न्योता ही आ गया मुझे यमराज का. So that is the way one person looks at it. The second person looks at it that now I have learned the value of life and how I am going to work on the quality of my life. That is going to be my goal. Yes. So there is a change in perspective. So you cannot change the diagnosis of cancer nor the stage of cancer. But you can definitely have a choice how you are going to think about it. What is going to be your perspective, and that is the core issue for all immunity. So if you ask me which are the 2 words that we have to remember in this, those 2 words are, we have a choice to react or to respond. Okay. We have a choice. reaction चाहिए कि response चाहिए. अच्छा. और ये choice हमारे पास बहुत रहता है. एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट थे हमारे, जिनका नाम था डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेल. उनका एक बहुत बड़ा बेस्टसेलर है जो 20th सेंचुरी में भी था और 21st सेंचुरी में भी है, जिसे कहते हैं मैन सर्च फॉर मीनिंग. तो वो एक बहुत अच्छा बुक है, हर व्यक्ति ने वो पढ़ना चाहिए. मैन सर्च फॉर मीनिंग. ये विक्टर फ्रैंकेल जो है वो जू थे, और 2nd वर्ल्ड वॉर में वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे. अच्छा. और वहां से वो कैसे निकल आए वो सब कहानी उसमें है. और बाद में उन्होंने खुद की एक थेरेपी की मेथड डेवलप की, जिसको कहते हैं लोगो थेरेपी. लोगोस इसका मतलब है मीनिंग,
एक्चुअली हाँ, लोगोस का, हाँ लोगोस का मीनिंग है लॉजिक, ये लोगोस से आया, लेकिन इट्स नॉट ओनली लॉजिक, इट्स रैशनैलिटी, दैट व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये उन्होंने डेवलप किया। तो मेरा कहने का ये ऐसा था कि उन्होंने बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट दी है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ऐसी है, ही से दैट इन द फिजिकल यूनिवर्स स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यानी स्टिमुलस आ गया और उसका एक रिस्पॉन्स हो गया, तो इमीडिएटली हो जाता है ना, जो फिजिकल वर्ल्ड का रूल है। He says in the psychological world there is a slight difference between that stimulus and the response. There lies a space, and in that space lies a choice oh, whether to react or to respond. oh, that is beautiful. That is so beautiful that there is a space there also. There is a space there also. एंड आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो स्पेस है ना, जहां पे आप आपका फ्रीडम पाते हैं, जहां पे आप आपका लिबरेशन पाते हैं। लिबरेशन यानी क्या कि माय चॉइस, माय फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड और टू रिएक्ट, ये वाला। Yes. वो जो स्पेस है, वो स्पेस एक्चुअली जिसे कहते हैं ब्रह्म है। वो क्या हमारी पूरी परंपरा में जी, आप सब लोग आर्टिस्ट है, तो आपको नाद ब्रह्म मालूम है, आपको स्वर ब्रह्म मालूम है, और नृत्य में, गायन में जो एक ब्रह्म स्थिति हमारे परंपरा में बताई गई है, एग्जैक्टली ही इज टॉकिंग अबाउट दैट स्पेस। एंड ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये स्पेस क्या होती है वो कलाकार को मालूम है। वाह, ये स्पेस कलाकार कैसे पाता है उसकी जिंदगी में। पार्वती, आप इतनी अच्छी नृत्यवती है, आपको मालूम है, आप जब वो तिया करके when you come on that समेवर येणं आणि तू जेव्हा समेवर येतेस, त्याच्यानंतर देयर इज अ गॅप बिटवीन युअर नेक्स्ट बिट एंड समेवरती येणं, वहां पे ब्रह्म है, वहां पे स्पेस है। क्या बात। तो ये मैं इसके लिए कह रहा हूं कि जो दादिन धिन्ना किया 16 मात्रा हो गई, और मैं 16 मात्रा के बाद में आ गया, अगले आवर्तन का मेरा फर्स्ट मात्रा है, उसके बीच में वो 16 और अगले 16 के बीच में स्पेस है। ये बात सही। हाँ, वो और ये हमारे परंपरा में यही है, तालीम में हमको यही है कि तिहाई की या कोई भी बंदिश खत्म करने के बाद जब हम सम पे आते हैं तो सम पे ठहरना, वो जो स्पेस है। हाँ, तो आप जिसे कहते हैं आपकी भाषा में ठहराव, ऐसा बहुत अच्छा शब्द है। जी। तो वो जो ठहराव है, दैट इज द स्पेस, एंड दैट इज द सेम स्पेस दैट विक्टर फ्रैंकल इज टॉकिंग अबाउट। कि वो स्पेस अगर आप पाते हैं, यू गेट द फ्रीडम, यू गेट द फ्रीडम टू रिएक्ट और टू रिस्पॉन्ड। और ये एक बात यहाँ पे आ गई कि यार ये मेरे पास ये फ्रीडम है। हाँ, तो दूसरी बात ये होती है कि दिस फ्रीडम आई हैव टू यूज विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Very nice observation, very nice point, because responsibility is a very big thing. And do you see something? Responsibility is called responsibility. अरे वाह, इस तरह से भी ये शब्द को देखना चाहिए। बिल्कुल। The ability to respond. Ability to respond is responsibility. तो आपकी फ्रीडम और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक ही कॉइन के दो अलग अलग बाजू है। हाँ, and that's why Viktor Frankl said something very interesting, Parvati. He said when he was in Europe, then he went to America. So when first time he went to America, वो न्यूयॉर्क में आ गए, तो वहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो ईस्ट कोस्ट है ना अमेरिका का, तो ईस्ट कोस्ट पर अगर आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगाया है, तो वेस्ट कोस्ट पे आपको स्टैच्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाना चाहिए। ओह वाह। तो बोले अमेरिका पूरी हो जाएगी कि एक at one coast you have Statue of Liberty, on the other. That is such a nice thing that you have observed and you have suggested that with everything, जहाँ पे भी हम लिबर्टी की बात करते हैं, वहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और ये रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, ये अगर हम ध्यान में रखते हैं, और कलाकार को
जी जी जी, ये चाहिए कि कलाकार की पूरी तालीम जो है, बिल्कुल अगर आप कहेंगे तो वो पूरी तालीम रिएक्शन से रिस्पॉन्ड पर जाना है, पूरी की बिल्कुल। पूरी तालीम। आप किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में हो, आप नृत्य में हो, गायन में हो, एक्टिंग में हो, किसी में भी हो, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ विल यू रिस्पॉन्ड। जो एक्टर्स होते हैं, देखिए एक्टर्स क्या करते हैं, पहले स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद में ना वो स्टडी करते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसा होगा वैसा होगा, विजुअलाइज करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स विजुअलाइज करते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं उसको कैसे लाऊं, मेरे में कैसे लाऊं। तो व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड। यस वो जैसे स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, खड़े नहीं रहते हैं स्टेज पे, वो स्क्रिप्ट को धीरे 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 खुद में लाते हैं। आपके नृत्य का एग्जांपल लेते हैं कि कथक है, खास करके कथक लेते हैं क्योंकि वो उसमें कथा है, कथक में कैरेक्टर्स है, पर्सनालिटीज है। So when the dancer is doing that Kathak, you will see greatest of great gurus in Kathak. उनका chronological physical age कितना भी हो, वो कैरेक्टर में जाते हैं और वो समझो कृष्ण बन गए। तो आपको एक क्षण के लिए उन्होंने ऐसा एहसास दिया कि यार ये तो कृष्ण है, हाँ ये तो गोकुल में या वृंदावन में आया हुआ कृष्ण है। उनका फिजियोलॉजिकल उम्र कितना भी हो, सो इन दैट स्पेस दे आर रिस्पॉन्डिंग। सो ऑल आर्ट इज टू लर्न टू रिस्पॉन्ड, ऑल आर्ट। यस, हाँ, एंड देयरफॉर आर्टिस्ट की इम्यूनिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए। ऐसा हम लोग हमेशा मान के तो चलते हैं, बिकॉज आई थिंक कलाकार लोग अपने तरह के वॉरियर्स होते हैं, राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे मे हैव चोजन टू बिकम आर्टिस्ट। आई थिंक many of the artists whom you see today, even many of the learners, शायद वो काफी संघर्ष करके, मतलब भावनात्मक ही क्यों ना हुआ हो, पारिवारिक भी हो जाता है कई बार या सामाजिक भी होता है, तो वो अपने तरह के वॉरियर्स तो है ही, और इसलिए उनका एक हद तक तो कह सकते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम बाकी बहुत तरह के लोगों से शायद टेक्निकली बेहतर काम करना चाहिए। लेकिन कुछ बात एक थोड़ी सी एडिशन करता हूँ, इंटरेस्टिंग है और कलाकार की है इसलिए जी। सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये गली बॉय पिक्चर देखी होगी। तो ये गली बॉय पिक्चर जो है, हाँ देखिए आप, बहुत अच्छी पिक्चर है। ओके। तो ये गली बॉय में क्या होता है, वो अपनी जो निगेटिव इमोशंस है, उसकी जो वेदनाएं हैं, वो उसकी कविता में लाता है। अच्छा। हाँ, सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव मूवी, और वो रैप में लाता है। और क्योंकि रैप का पूरी हिस्ट्री ही एक प्रकार से एक इट्स अ क्लास स्ट्रगल वाली है, जो आया अमेरिका से, दैट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल। So he is here shown in Dharavi, and he is trying to cope up with a very negative reality. ऐसा है वो, और वो खुद उसमें कविता लिखना शुरू करता है, अपना म्यूजिक वो बनाना शुरू करता है, तो वो एक कलाकार है। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि इम्यूनिटी होने के लिए आप में चाहिए एक रेजिलियंस, और वो जो रेजिलियंस है वो कैसे रेजिलियंस होता है कि जो आपको आपकी इर्द गिर्द आजू बाजू में जो फिजिकल रियलिटीज है, जो इकोनॉमिकल रियलिटीज है, उनसे वो रेजिलियंस आपको सिखाता है कि ये ऐसा है। मैंने गली बॉय का एग्जांपल इसलिए लिया कि उसमें बहुत अच्छा शॉट है, जिन्होंने देखा होगा वो जरूर याद करेंगे। वो अपनी एक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन वो उसकी एसोसिएट होती है, उसके घर में जाता है, और वो एक बहुत एफ्लुएंट फैमिली में रहती है, एंड ही गोज टू द वॉशरूम। द मोमेंट ही गोज टू द वॉशरूम, he finds out that washroom is much bigger than his house in Dharavi. Okay? और एक भी डायलॉग नहीं है उस शॉट में। उसमें ऐसा है कि वो ना पैर से पैर करके वो नापता है वो वॉशरूम को। अच्छा। और वो नापता जब है तो हमें पता चलता है कि यार व्हाट इज ही डूइंग एंड व्हाट ही इज कोरिलेटिंग, व्हाट इज इन हिज माइंड।
what are his associations? हाँ हाँ And but this guy is resilient. वो बोलता है ठीक है ये मेरा आज का आज है जी हाँ, लेकिन वो कल का कल कैसा होगा वो मैं देखूंगा. दैट इज जी रेजिलियंस. तो कलाकार में एक जगह पे ये क्रिएटिविटी की देन है, वो इम्यूनिटी, जी लेकिन उसको अगर हमें अच्छा बरकरार रखना है जी तो उसके लिए रेजिलियंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ट्रू ट्रू. Yes. अभी आपने जब रेजिलियंस की बात बोली, दो तीन चीजें मेरे दिमाग में आती हैं और मुझे लगता है कि एक तो ये भी है कि हम लोग इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, मुझे लगता है हम सभी गुजरते हैं उससे. इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, देयर आर रफ फेजेस इन आवर लाइफ, क्राइसिस मोमेंट्स होते हैं, there are moments of pain, suffering, challenges. There are also moments of astonishment, of celebration, of surprises. तो जिंदगी में ये सब तो है. लाइफ इज एक्चुअली अ रोलर कोस्टर राइड अगर हम बोलें. लेकिन एक कोपिंग एबिलिटी की भी बात हो जाती है कि हाउ वी कोप विथ हैप्पीनेस एंड एंजाइटी या डिस्पेयर या डिस्ट्रेस. तो इस पे बात करने से पहले एक मेरे सामने तीन शब्द आते हैं. एक तो है इमोशनल कोशेंट, जो हम लोग अक्सर जिसके बारे में बात करते हैं. देन समथिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल प्रोफाइल. आई वर्क विथ महात्मा गांधी मिशन with the MGM यूनिवर्सिटी, एंड आप तो महागामी गुरुकुल जानते ही हैं. पिछले 23 सालों से हम लोग कार्यरत हैं और आप ये भी जानते हैं कि we've been working with a kind of awareness of integrating many other streams, looking at all the directions. तो मैं ये साइकोलॉजिकल प्रोफाइल के बारे में भी थोड़ा बहुत जिज्ञासा रखने लगी और देखने लगी कि हाँ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में थोड़ा तो मालूम होना चाहिए. एंड देन so one is emotional quotient, one is psychological profile, and the third thing is about the mental makeup. I don't know if that is the right term or not, but something to do with the mental faculties and something which also can be an indicator to any kind of mental ailment, if any. तो ये तीन बातें हैं. मुझे नहीं मालूम कि ये ओवरलैपिंग है, इंटरकनेक्टेड है. कैन वन लीड टू द अदर or can one affect or enrich the other, or how does it go? मैं थोड़ा पार्वती डिसऑर्डर्स को दूर में रखता हूँ अभी. जी. अभी हम नॉर्मल साइकोलॉजी की पहले बात करते हैं और जिसमें ये तीन जो आपने शब्द यूज किए उनको समझ लेने की कोशिश करते हैं जी. और बाद में मैं रोलर कोस्टर के यहाँ पे वापस आता हूँ. हाँ, पहला देखिए मेंटल मेकअप क्या है. मेंटल मेकअप, इसका एक सिंपल मीनिंग है, मैं आपको बताऊं. व्हाट इज आवर माइंड? आवर माइंड इज अ बैलेंस्ड माइंड इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर. वेरी सिंपल. ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. इसमें विचार है, भावनाएं हैं और वर्तन है. हर एक आदमी में ये है. तीन ये जो ट्रायंगल है वो हर एक आदमी में है जी. और कलाकार के लिए ये ट्रायंगल को अगर आप पिरामिड बनाएंगे तो वो चौथा जो केंद्र बिंदु आ जाएगा उसको हम कहते हैं शरीर. वो एक्टर का शरीर हो, वो वादक का शरीर हो, वो नृत्य कलाकार का शरीर हो. सो लुक एट इट वेरी सिंपली एज अ पिरामिड. एंड नाउ आपने जो मेंटल मेकअप कहा वो क्या होता है? वो ऐसे होता है कि सब में ये पिरामिड है. पिरामिड के ये चार केंद्र है: विचार, भावना, वर्तन और शरीर. कोई लोग जो ऐसे होते हैं जो थोड़े से उनका इंक्लिनेशन विचारों में ज्यादा होता है, राइट? उनको हमारी परंपरा क्या कहती है? ये लोग है ज्ञान मार्गी, क्योंकि उनका इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स थिंकिंग. दूसरे जो लोग होते हैं उनका इंक्लिनेशन होता है भावनाओं की तरफ. उनको हम क्या कहते हैं? भक्ति मार्गी. बिकॉज दे हैव देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इमोशंस. ऑल्दो एवरीबडी हैज अ पिरामिड, बट हर एक का मेंटल मेकअप कैसे अलग अलग होता है.
जी So somebody is more tuned to thinking, somebody is more tuned to emotions, हाँ somebody is more tuned to behavior. वो कर्म मार्गी रहते हैं। ओके यानी कि जो ज्ञान हाँ मार्ग है, आपको आप भी देखेंगे कि आपके कुछ शिष्य ऐसे हो गए, वो आकर बोलते हैं आपको कि वो मुझे हमें बुक्स बताइए, वो संहिता कौन सी है वो बताइए, वो भरत का नाट्य शास्त्र बताइए, हम कालिदास को पढ़ना चाहते हैं, एटसेट्रा। दे आर द थिंकिंग टाइप्स। जो भाविक भावनाशील होते हैं, यानी पिरामिड हर में है, लेकिन वो मेंटल मेकअप होता है, कई लोग भावनाशील ज्यादा होते हैं, मोर इमोशनल। वो रिश्ते में बिलीव करते हैं कि जितना गुरु और उस शिष्य का बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग उनके लिए बहुत मायने रखता है, बिकॉज दे आर मोर इमोशनल, थोड़े भक्ति मार्गी होते हैं वो। और कुछ लोग होते हैं ना, वो बुक्स बाजू में रखो, मैं 40 बार इसको करूंगा, फिर 41वीं बार उसमें मेरे को मास्टरी आ जाएगी। सो दे आर कर्म मार्गी। और कुछ लोग जो है वो शरीर से बोलते हैं, तो प्लेयर्स और इवन नर्तक, सो दे आर योग मार्गी। वाह हाँ, तो ये क्या है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है, वाह सेम वाह पिरामिड। तो मेंटल मेकअप में क्या देखना है कि हाँ हर एक का ना अपना इंक्लिनेशन क्या है, हाँ उस इंक्लिनेशन के हिसाब से अगर आप जाते हैं, हाँ, तो आपका करियर और अच्छा हो जाता है। इंक्लिनेशन आपका अवेयरनेस में आ जाता है कि अरे हाँ, मेरा इंक्लिनेशन ऐसा ऐसा। यानी ये चारों पिरामिड में ये चारों ही इंक्लिनेशंस होने वाले लोग या तो नर्तक हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको वो अवेयरनेस है कि ये मेरा इंक्लिनेशन है ना, दे विल ऑलवेज बी बेटर एक्टर्स, बेटर इंडिविजुअल्स, बेटर आर्टिस्ट। या तो वो मेंटल मेकअप है पिरामिड वाला। ओके, अभी जो प्रोफाइल है उसमें क्या आता है, प्रोफाइल में कला के लिए खास करके आता है, और वो इट्स ट्रू फॉर लाइफ आल्सो, एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन। आप अंतर्मुख है या आप बहिर्मुख है, बहुत मायने रखता है कलाकार के लिए। कि एक बाजू कलाकार बहुत आप सारे आपने देखे होंगे कि वो निजी जिंदगी में अंतर्मुख होते हैं, स्टेज पे चले जाते हैं तो दे आर डिफरेंट। उनकी पूरी बहिर्मुखता, उनका पूरा एक्सट्रोवर्जन स्टेज पे बाहर आता है। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ, हमारे जो सीनियर एक्टर है दिलीप प्रभावलकर, मराठी में, हिंदी में, आप उनको देखते निजी रूप में वेरी इंट्रोवर्ट, बट द मोमेंट ही गोज इनटू रोल ही परफॉर्म्स सो वेल। सो उनको ना बराबर इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन कहाँ पे बैलेंस करना है वो आता है। सो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल मीन्स हाउ टू बैलेंस इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट आप जब तालीम कर रहे हैं तो आपको इंट्रोवर्ट होना चाहिए, जब आप स्टेज पे जब पर्दा बाजू हो जाता है आपको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। लेकिन जब आप एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो इंट्रोवर्ट, यू आर लुकिंग एट योर ओन परफॉर्मेंस। सी द बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। हर कलाकार के लिए ईशावास्य उपनिषद ने कहा है रश्मिन व्यूह रश्मिन समूह, रश्मिन व्यूह रश्मिन समूह। यानी सूरज क्या करता है, अपनी किरणें फैलाता है, दैट इज एक्सट्रोवर्जन। शाम को क्या करता है, अपनी पूरी किरणें जोड़ लेता है, दैट इज इंट्रोवर्जन। हाँ, तो रश्मिन व्यूह रश्मिन समूह की इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन का बैलेंस हर व्यक्ति के लिए, हर कलाकार के लिए बहुत आवश्यक है। तो दैट इज योर साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। तो मेंटल मेकअप, साइकोलॉजिकल प्रोफाइल, और जब भी ये मेंटल मेकअप और साइकोलॉजिकल प्रोफाइल का बैलेंसिंग आ जाता है, वो समतोल आ जाता है, तो अपने आप EQ बन जाता है। तो इमोशनल कोशेंट अपने आप बन जाता है। उस इमोशनल कोशेंट में क्या है चीजें, एक जो है वो यानी किन का EQ अच्छा, तो एक बाजू जो है जिनका रेजिलियंस अच्छा उनका EQ अच्छा, जिसे हम EQ कहते हैं, इट्स अ
bunch of emotions actually. Yes, yes, It's a गुलदस्ता है वो, yes. emotions का एक गुलदस्ता है. और जी, गुलदस्ता is a good image कि हर एक फूल का अपना अपना एक रंग और स्वाद है, रंग, गंध है, उसका कलर है, जी, और हर पूरे मिलके भी वो एक समेट के भी उनकी एक अलग ब्यूटी है. बहुत सो बढ़िया. EQ में क्या आता है? EQ में एक है वो रेजिलियंस है. अभी देखिए रेजिलियंस भी एक फूल नहीं है. हाँ, रेजिलियंस इटसेल्फ, रेजिलियंस में एक जो है वो है पेशेंस, जिसे हम कहते हैं धीर. तो धीर ये बिल्कुल ही एक्टिव इमोशन है, ये पैसिव इमोशन नहीं है. इसको हमारे मराठी में हमारे ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, संत ज्ञानेश्वर ने कहा है, इट्स नॉट सहन शक्ति, इट इज सहन सिद्धि. तो ये बहुत विचार करने वाली बात है कि वाई ज्ञानेश्वर इज सेइंग सहन सिद्धि. सीखनी है वो आपको, और क्या सीखना? इट्स नॉट पैसिव. मैं जब भी, इट्स नॉट वेट, आई एम जस्ट वेटिंग. पेशेंट यानी कि हम लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं, नहीं. वो दिखता है कि आप वेट कर रहे हैं. आपके मन में ये परिस्थिति जो आज बिल्कुल कठिन नजर आ रही है, इसको सॉल्व करने के जो बहुत सारे पर्याय है, बहुत सारे विकल्प है, उनके ऊपर आप थिंक कर रहे हैं. अंदर लग रहा है बाहर के यू आर वेटिंग, बट इनसाइड यू आर एक्टिव. यू आर ऑलवेज एनालाइजिंग द सिचुएशन कि इसमें मेरे नियंत्रण में कौन सी चीजें हैं, नियंत्रण के बाहर कौन सी चीजें. And you are thinking about alternatives. So patience, धीर जिसे कहते हैं, धीर यानी मराठीत म्हणतो त्याला आपण धरून ठेवणं. धातू वही है, धातू वही है, धीर, धैर्य, धैर्य. आणि मजेची गोष्ट म्हणजे धरण हा मराठीतला शब्द पण त्याच धातू मधून आलाय. धरण अभी हमारा कैसे है? धरण काय करतं? ते पाण्याला पकडून ठेवतं. ते धरण वाहिलं, पाणी जास्त झालं की मग ते वाहत. सो वो धीर जो है वो पेशेंस है. अच्छा, दूसरा है डिटर्मिनेशन. तीसरा है जिसे हम कहते हैं नॉट ब्लाइंड बट डोळस साहस, करेज. बट डोळस म्हणजे बघून केलेलं. इट्स नॉट ब्लाइंड रिस्क, इट इज करेज. देन रेजिलियंस में आता है सेल्फ डिसिप्लिन. ये रेजिलियंस में आता है. ये सब मिला के रेजिलियंस होता है, जो EQ का एक पार्ट है. EQ का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और खास करके सब परफॉर्मर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए, जिसको कहते हैं प्रोसेस इमोशंस. प्रोसेस इमोशंस, देखिए हम सब में इमोशंस के दो ट्रिगर्स होते हैं. एक प्रोसेस है और दूसरा आउटकम है. तो आउटकम इमोशंस होते हैं, प्रोसेस इमोशंस होते हैं. तो आउटकम इमोशंस किसके ऊपर डिपेंड है? आउटकम के ऊपर आउटकम इमोशंस डिपेंडेंट है. मेरा आज का परफॉर्मेंस कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, आउटकम इमोशन जी. सो EQ इज आपके जो प्रोसेस इमोशंस है, उनका इतना आधिक्य है आप में. जितना आपका आधिक्य बढ़ जाएगा प्रोसेस इमोशंस का, और जितना आधिक्य आपके आउटकम इमोशंस का कम होते जाएगा, आपका EQ स्ट्रांग है. तो मैं आपको देखिए, रेजिलियंस जितना स्ट्रांग है, EQ आपका कब स्ट्रांग बोलेंगे? कि जब प्रोसेस इमोशंस आर डोमिनेटिंग द आउटकम इमोशंस. आई एम नॉट सेइंग आउटकम इमोशंस विल गो, बट प्रोसेस इमोशंस विल बी मोर देन आउटकम इमोशंस फॉर एन आर्टिस्ट. फिर आर्टिस्ट का EQ अच्छा है. फिर आर्टिस्ट ना खुद को मैं कामयाब हो गया या मैं नाकामयाब हो गया, ये जो है कामयाबी और नाकामयाबी उसके जिंदगी में आ सकती है, लेकिन वो खुद को फिर नाकामयाब या कामयाब ऐसे खुद के ऊपर लेबल्स नहीं देगा. फिर हम कहेंगे कि इसके प्रोसेस इमोशंस आर डोमिनेटिंग. सो ही इज नॉट लेबलिंग हिमसेल्फ. प्रोसेस इमोशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो EQ में सेकंड ग्रुप है प्रोसेस इमोशंस का. EQ में थर्ड ग्रुप जो है वो ऐसा है कि whenever you get very painful intense emotions such as depression, anxiety, anger,
you have your ability to channelize those intense painful emotions. जैसे हमारी पूरे की पूरी कला में ये बताया गया है बिल्कुल कि हमारा जो तांडव नृत्य है नटराज का, सो तांडव नृत्य ये क्या है? तांडव नृत्य एक बाजू जो संहार है, जो एग्रेशन है, उसका एक चैनलाइजेशन है, राइट? तो हर एक भावना कला में चैनलाइज होती है। तो जो निगेटिव, इंटेंस निगेटिव भावनाएं, उनको हम क्रिएटिवली चैनलाइज करते हैं तो आपका ईक्यू अच्छा है। तो आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं और आपके मुंह से बहुत अच्छी गजल निकलती है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना गाने में बड़ा दर्द है। हाँ, गाने में दर्द है। हाँ। हाँ, सो और ये जो आपने तांडव की बात बोली ना, असल में संहार तांडव तो एक है ही, लेकिन आनंद तांडव भी है। यानी हाउ इवन एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस, उसको भी तो एक चैनलाइज करने के लिए एक कुछ, वो भी तो एक एक्स्ट्रा, एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस तो है वो भी। So EQ means what? How can you channelize any intense emotion? Yes. It could be negative, it could be positive. So that is the third part of your EQ. Yes. And the fourth part of EQ, most important, is called understanding the other person's emotions. जिससे हम एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी, यस। हाँ, तो ये चारों मिला के आपका EQ बनता है। वाह। एंड एम्पैथी, अभी मैं इसलिए एम्पैथी पे आने ही वाली थी क्योंकि अभी एम्पैथी हम लोग अभी बात कर रहे थे। इनफैक्ट मैंने अभी महागामी गुरुकुल के तत्वावधान में MGM यूनिवर्सिटी के लिए एक शॉर्ट टर्म कोर्स डिजाइन किया है ऑन एम्पैथी। अच्छा, अच्छी बात है। या टीचिंग एम्पैथी थ्रू स्टोरी टेलिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। यस, वेरी नाइस। और तब सबने बहुत वेलकम किया कि अरे ये बहुत अच्छी बात सोची गई है। एंड देन देयर वाज अ डायलॉग बिटवीन द एजुकेटर्स, हमारे साथ जितने हमारे कलीग्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, एंड दे सेड इट्स द नीड ऑफ द टाइम टू टीच एम्पैथी। एंड लेकिन अब ये भी एक विषय सामने आता है कि empathy was always part of our upbringing, probably our social network and our social fabric, our cultural fabric. When do you think, what were the causes of people being away from, maybe if they are little away from empathy, not realizing the importance of that? I'm especially asking this because आज की जो दुनिया है, be it professionals, be it educators, be it learners, और मैं तो कहूँगी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, जो भी इस तरह के फ्रीलांसर्स बहुत सारे, एक अलग तरह की कंपटीशन की भावना, एक अलग तरह की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एंजाइटी एंड प्रेशर की भावना, और इससे जुड़ा हुआ जो एक हमारे अंदर का एक जो मेलोनेस है, सॉफ्टनेस है, I think over time that is of course a concern that yes, we are as artists, when being an artist is such a great thing and it's such a blessing, मगर empathy के बारे में ये एक समय आ गया है जब it has to be taught. So how do you reflect on that, and what do you think would be the reason that we have to come back and integrate or incorporate empathy oriented courses in the education sector? Let me address this question step by step. पहले हम causes की तरफ आते हैं जी। अभी क्या हो गया है कि in the globalized world, what are two things have happened. One is that individuality has started finding its own expressions. हमारे ट्रेडिशनल भारतीयत्व में इंडिविजुअलिटी और कलेक्टिविज्म, और इंडिविजुअलिज्म में कलेक्टिविज्म को ज्यादा महत्व था, जो फैमिली सिस्टम से लेकर समाज के सिस्टम तक हर जगह पे रिफ्लेक्ट होता था जी। जैसे ही हमारी दुनिया ज्यादा ग्लोबलाइज बनते गई, एक बाजू से पैराडॉक्सिकली पीपल स्टार्टेड बिकमिंग मोर इंडिविजुअलिस्टिक,
और ये इंडिविजुअलिज्म ये पूरा का पूरा उनमें धीरे धीरे पूरी व्यवस्था से, एनवायरनमेंट से आने लगा। इसके लिए जो इंडिविजुअलिज्म है वो बुरा नहीं है, लेकिन इंडिविजुअलिज्म का जो एक्सट्रीम होता है वो आदमी को एम्पैथी से दूर ले जाता है। इसलिए जैसे भी इंडिविजुअलिज्म बढ़ते रहता है उसको टीचिंग की या लर्निंग की जरूरत पड़ जाती है। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि पहले जमाने में एम्पैथी ये हमारे कल्चर में एम्बेडेड लर्निंग का एक भाग थी। बिल्कुल। So there are types of learning. So one type of learning is called embedded learning. The second type of learning is called implanted learning. अभी आपको implanted learning की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपके embedded learning वाली जो चीजें हैं वो थोड़ी कम हो गई है। embedded learning जैसे कम हो जाता है, implanted learning ने उसकी जगह लेनी चाहिए। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ व्हाट इज एम्बेडेड लर्निंग। मैं एक ऐसे मुझे याद आ गया कि एक मराठी में हमारी एक लेखिका है, भाषांतरकार है, तो उनका नाम डॉक्टर उमा कुलकर्णी करके है। वो कन्नड़ से मराठी में बहुत सारा साहित्य उन्होंने लाया, तो उनके मैं मेमोयर्स पढ़ रहा था। तो उसमें ऐसा है की उनकी जो एक्सटेंडेड फॅमिली थी, त्यांची मामी होती एक, ती मामी काय करायची तर त्या खेड्यामध्ये, त्या गावामध्ये जितने भी मेंटली इल थे उन सबके लिए वो हर साल अपने मशीन पे बैठकर या हाथ से उनके लिए कपड़े सिलाती थी। तो घर में उस गांव में, हाँ, उसके घर के भी नहीं, जी जी, गांव के लिए जो मेंटली इल है, शायद वो मेंटली ग्रॉस टर्म, उसमें थोड़े से मेंटली रिटार्डेड होंगे, थोड़े से मेंटली इल होंगे, जो कुछ भी है जी। But she used to think about it actively और हर साल वो उसके लिए कपड़े सिलाती थी। Now this is what I called embedded empathy. वाह, वो पूरे कल्चर का भाग बन चुके थे। अभी ये 21st सेंचुरी वर्ल्ड में क्या हो गया कि embedded empathy because of all migrations बोलो, फैमिली सिस्टम के चेंजेस बोलो, इंडिविजुअलिज्म जितना बढ़ता गया, embedded learning of empathy started becoming less and less. Therefore, now time has come to include empathy in the implanted learning. Implanted learning यानी हमारे educational system है, आपके जो बाकी के प्रकार है उसमें भी empathy का कोर्स आप कीजिए. All that has come because of that. We need to understand that. Yes. Also, when individualism ज्यादा बढ़ता है और लोग संकुचित या रिस्ट्रिक्टेड विचार करने लगते हैं, खास करके कोविड जैसी सिचुएशन में अभी एम्पैथी की बहुत सारी जरूरत है। अगर हम दूसरे को नहीं समझ पाते हैं और समझ पाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो जैसे आपने देखा कि एक बाजू कहते हैं कोविड वॉरियर्स और वो अपने घर में जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि हमारे सोसाइटी में आपको नहीं रहना है। बराबर है, वो जो हम देख रहे हैं कि द लैक ऑफ एम्पैथी पार्ट वी आर सीइंग इन द डे टू डे लाइफ। सो इन ऑल क्राइसिस यू रिक्वायर एम्पैथी। Yes. Now specifically coming to your course in performing arts, why empathy is important is because of two reasons. One, आपको एक कवि के एक रचना है उसको प्रेजेंट करना है, या नाटककार ने लिखा हुआ डायलॉग है उसको प्रेजेंट करना है, या बंदिश प्रेजेंट करनी है. You have to put yourself in the emotions of the other person. Yes. So as a performer you require empathy, number one. Number two, your performance is team playing, so you need to understand the emotions of your team members. So empathy is important. Yes. Yes. Finally you are going to perform for the audience, तो ऑडियंस के प्रति आपको एम्पैथी होनी चाहिए. तो कितने सतहों पर, कितने लेवल्स पर एम्पैथी ऑपरेट होती है एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए. हाँ, वो उसको खुद से लेकर, उसके टीम से लेकर, उसके ऑडियंस तक. इस पे मेरे को एक छोटी सी बात लगती है कि शेयर करूं मैं. वो ये कि जब हम एम्पैथी की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हमारे
स्क्रिप्चर्स में एक शब्द है सहृदय, बरोबर। सहृदय। तो मैं आजकल यही कहती हूँ कि ऑडियंस भी 3 तरह की होती जा रही है। एक है प्रेक्षक यानी स्पेक्टेटर। तो स्पेक्टेटर जो है वो बिना किसी अटैचमेंट के वो देख सकता है एक दृश्य, वो स्पेक्टेटर हुआ, बराबर प्रेक्षक। बराबर। दूसरा हुआ रसिक, जिसको रस ग्रहण की क्षमता है और जो थोड़ा उसकी बारीकियां समझ पाए। तो कलाकार की कलाकृति को वो कुछ हद तक महसूस कर पा रहा है, समझ पा रहा है, उसकी थोड़ी टेक्निकलिटी भी समझ पा रहा है और फिलोसॉफिकली माने ज्ञानेंद्रिय के द्वारा उसको रिसीव कर पा रहा है इंफॉर्मेशन को। सो वो हो गया रसिक। तीसरा हुआ सहृदय। तो मैं ये भी एक देखने लगी हूँ कि सहृदय बनना कितना जरूरी है। यानी कलाकार समाज में क्या कर सकता है? कलाकार अपने संवेदनशील प्रस्तुतियों के द्वारा एम्पैथी समाज में बांट सकता है या अवेकन कर सकता है या इवोक कर सकता है और हर व्यक्ति को प्रेक्षक से रसिक बना सकता है, रसिक से सहृदय बना सकता है। बिकॉज आई हैव अ फीलिंग दैट सहृदय बनने के लिए वो एम्पैथी, वो जो सहृदयता है, यानी वो जो सब्जेक्ट है और जो प्रस्तुतिकरण का सेंट्रल थीम है, उसके साथ आप पूरी तरह से एकात्म हो पाए। तो जहां ये ऑडियंस का काम है, ये जहां ये कलाकार का काम है, वही आर्टिस्ट भी, यानी इस तरह से वो एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है आइडियली, जो होता रहा होगा वर्षों से, सदियों से। तो आप जो कह रही है वो शब्द बहुत अच्छा है। आप कह रही है सहृदय जी। इसमें एक छिपा हुआ शब्द है, वो है सहृदय। हाँ। तो उसमें एक ह छिपा हुआ है। जी। हाँ, तो आपको सहृदय होने के लिए पहले सहृदय होना पड़ेगा। जी। और अगर आपको सहृदय होना है जी। तो शुरुआत खुद के हृदय से करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये पहले सहृदयता सोचिए, बिल्कुल। बाद में सहृदयता आ जाएगी। या तो खुद के हृदय के साथ रहो, खुद के हृदय के पास रहो। बिल्कुल बिल्कुल। That is why your emotional awareness is important. यस। फिर अगर खुद के हृदय के पास सह रहेंगे, सहित रहेंगे, तो फिर दूसरे के हृदय के सहित रहेंगे। और जब दोनों सह हृदय मिल जाते हैं, तो फिर सहृदयता आ जाती है। सहृदयता is not the individual emotion. यस। सहृदयता ये एक इमोशनल प्रोसेस है। यस। और ये जो प्रोसेस है वो दोनों के बीच में होती है। और जैसे हमारे ज्ञानेश्वर कहते हैं, ये हृदय से ते हृदयी घातले। सो ये हृदय से ते हृदयी घातले, दैट इज सहृदयता। वो कहते हैं कि ऐसे जब संवाद हो जाता है तब किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो समझ जाते हैं। बिल्कुल। कबीर जी कहते हैं 2.5 अक्षर प्यार के। तो वो 2.5 अक्षर है, 2 नहीं है। सो वो जो एक छिपा हुआ आधा अक्षर है जी, वो सहृदयता है। बिल्कुल। वो जो है वो सहिष्णुता है। हमारा जो ओंकार है, ओंकार में 3 मात्राएं नहीं, अ उ म 3 मात्राएं, लेकिन ओंकार में 3.5 मात्रा है। वो जो आधी मात्रा है वो सहृदयता है। हाँ, तो ये सहृदयता और सहृदयता, तो ये अगर हम समझ लेते हैं दोनों का खेल, कि सहृदयता और सहृदयता, तो हमारे लिए और कलाकार के लिए बहुत अच्छा होगा। जी। एक मैं आप जहां पर अभी एम्पैथी की बात हुई और हमने इम्यूनिटी की बात की, तो आप मतलब आजकल का जो एक नया दौर चल पड़ा है, मतलब एजुकेशन में स्टूडेंट्स के लिए, मैं आज का सत्र मेनली लर्नर्स की तरफ भी केंद्रित करना चाहती हूँ, जिनके सामने अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं। मैं पिछले बहुत सालों से सिखाती हूँ, तो मैं भी थोड़ा बहुत परिचित हूँ सबकी अपनी अपनी अन्य मनस्कता से, या थोड़े कंफ्यूजन से, या नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। ऐसे कई तरह की चीजें हैं और मैंने समय समय पे एज अ फ्रेंड एंड एज अ को ट्रैवलर मैंने
कोशिश तो की है कि हम समझ सकें कि किस तरह से ये चीज को एड्रेस किया जा सकता है। वही कुछ और बातें हैं जो कोपिंग एबिलिटी से जुड़ी हुई हैं, जैसे हाउ टू डील विथ रिजेक्शन, कंपटीशन, फेलियर्स, एक्सपेक्टेशंस, challenges, jealousy, and अभी कुछ लोगों ने मैंने सबसे पूछा था कि please share your concerns and what are the points that you would like to raise during the session. So some of them have also said about deadlines, performance related pressure, या अपनी inabilities और उससे जुड़े हुए जो challenges हैं. I think there are a lot of such things which to your understanding would be somewhere related to your own way of looking at yourself. आपने जब कहा अपने हृदय को समझो, और so how would you guide people who find it difficult to cope with these challenges? और ये मैं सब लेवल पे बोल रही हूँ कि लर्नर्स के लिए भी, बट एजुकेटर्स एंड परफॉर्मर्स, बिकॉज परफॉर्मर्स हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपटीशन और डेडलाइन और performance related anxiety or that kind of pressure. So what do you think about this? ये अच्छी बात हो गई कि आप रोलर कोस्टर के तरफ आता हो अभी। अच्छा। हाँ, ये जो एक्सपेक्टेशन, कंपटीशन, जेलसी, डेडलाइन, फेलियर, सक्सेस, ये सब एक ही रोलर कोस्टर के अलग अलग जो बिठाए गए हैं ना सीट्स है ना, जैसे रोलर कोस्टर सीट्स होते हैं, तो यहाँ सगळ्या सीट्स आहेत यार। यानी आप कितने भी नाम दे दो, तो लेकिन वो रोलर कोस्टर एक है और उसमें सीट्स एक है। अभी क्या होता है, हम सब लोग एक एक सीट की तरफ देखते हैं। ये जेलसी है, ये कंपटीशन है, ये डेडलाइन है। अभी ये पूरा रोलर कोस्टर कहां से शुरू हो जाता है? उसके मध्य से। तो आप रोलर कोस्टर का ये पेरीफेरी क्यों देख रहे हो? अच्छा। आप मध्य की तरफ आओ। मध्य एक है। अच्छा। वहां से ये सब आ जाता है। या सेंटर मधनं ह्या सगळ्या गोष्टी येतात आणि ते सगळे पाळणे आहेत लावलेले। एक जेलसीचा पाळणा आहे, एक कॉम्पिटिशनचा आहे, एक डेडलाइनचा आहे, एक यशाचा आहे, एक कीर्तीचा आहे, एक अपयशाचा आहे। अभी यश का जो मेरा परफॉर्मेंस का जो एक वो ये है, तो जो पाळणा है, जब ऊपर जाएगा तो उसको यश कहेंगे, जब नीचे आएगा तो उसको अपयश कहेंगे। बराबर है? हाँ, म्हणजे तो माझा पाळणाच है ना एक। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 करते हैं, और 1 2 3 4 करके वो 20 है, देखो। और वो 20 ऐसे बाहर से घूम रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, यश अपयश। कंपटीशन में मैं विजेता हो गया, मैं फेल्यूर हो गया। हाँ, क्या हो रहा है? मेरा पूरा ध्यान कहाँ पे है? पेरीफेरी पर है। लेकिन सेंटर में क्या है? सेंटर जो है ना, वहां पे मैं हूं। So I am at the center. But and I that is why, मतलब आत्मा and not the ego. That is why my identity will give rise to my knowledge. And my knowledge will give rise to my emotions and actions. So if I have to focus on the center, in center is my identity. मैं खुद को किस दृष्टि से देखता हूं, मैं खुद को किस दृष्टि से समझता हूं, इसके ऊपर मैं रोलर कोस्टर के ऊपर जाना देख लूंगा। और देखिए, रोलर कोस्टर कितना भी घूमे, अगर उसको घुमाने वाला जो सेंटर है, दैट सेंटर इज एक्चुअली नॉन मूविंग। I have to go and reach to that non-moving center. Very nice. And actually all arts actually teach us to go towards that non-moving center. That non-moving center is me. And when I go to that non-moving center, I go beyond expectations.
अभी, और वो जो मेरा एहसास है, जो मुझे आता है, आप सबको आया होगा. There are some performances of all performing artists. It is regardless of the audience response. It is regardless of the physical conditions. But there are some performances when at the end आपका पूरा परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है, फिर वो अवकाश होता है. उस अवकाश में एक अनाहत नाद होता है, जिसको हमारी परंपरा ने कहा है अनाहत नाद. इट्स द सॉन्ग ऑफ द साइलेंस. और वो जो सॉन्ग ऑफ द साइलेंस है, वो आप जब भी महसूस करते हैं, एट दैट टाइम यू आर एट द सेंटर. यस, दैट इज योर सेंटर. और ये हमारे परंपरा में कहा ही गया है. So get rooted to your center. And what is the important part of your center? You know, जो हमारी परंपरा में कहा है, फिर मैं उसको साइकोलॉजी के साथ जोड़ता हूँ. परंपरा ने कहा है कि that is where your me, your individual me, your restricted me gets liberated. Your restricted me becomes a part of that whole space and catch that experience. That is the most important learning experience. If you catch that experience, then you are at the center. Now see, on one side is the periphery, the moving roller coaster. बीच में आपका ये अहम ब्रह्मास्मि वाला सेंटर है, कि जो का संकुचित जो मैं मेरा स्व है, उसको मैंने भूल दिया, ते विरघळून गेलं, इट गॉट मेल्टेड अवे. इन दोनों के बीच में ये जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, दैट त्रिज्या इज कॉल्ड हेल्दी सेल्फ एक्सेप्टेंस. हेल्दी अभी मैं साइकोलॉजी सेल्फ एक्सेप्टेंस, हाँ, ये त्रिज्या है. तो आपकी त्रिज्या, जब आप रोलर कोस्टर के वहां जाओगे, that is where is the most unhealthy self acceptance. वहां से जैसे आप सेंटर के तरफ आओगे, you are coming from unhealthy self acceptance to healthy self acceptance. I'll just spell out what is healthy self acceptance, but ये प्रवास पहले देखिए, ये जर्नी देखिए, और फिर आप सेंटर के पास आएंगे तो आपके पास एक सेंटर वाला अनुभव है, आपके पास एक पेरिफेरी वाला अनुभव है. दोनों को जोड़ने वाला जो ब्रिज है, वो हेल्दी सेल्फ एक्सेप्टेंस का है. अभी मैं आता हूं कि हेल्दी सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या है. हेल्दी सेल्फ एक्सेप्टेंस ये है, वेरी सिंपल. मैं हमारे अंग्रेजी का जो आई है ना, आई वर्ड, आई ABCDFGH आई वाला, आई यानी मी. तो मैं न कैपिटल आई हूं न स्मॉल आई हूं. मैं मुझे किस तरीके से देखता हूं, कभी कभी मैं खुद को देखता हूं कि मैं एक कैपिटल आई हूं, यार मेरे जैसा कोई नहीं, मैं एक जो परफॉर्मर हूं ना, हे मला जसं जमतं तसं कुणालाच जमत नाही. दॅट इज कॅपिटल आय. स्मॉल आईज मला काहीच जमत नाही. इकडे येऊन मला 1.5 वर्ष झाली महागामी मध्ये पार्वतीजींनी एवढं शिकवलं, काय फरकच नाही माझ्यात. आय एम तसाच राहिलो, स्मॉल आय. तो मैं कभी कभी स्मॉल आई होता हूं, कभी कभी मैं बिग आई होता हूं, कैपिटल आई होता हूं. और अभी देखिए जो तीसरा आई है, वो कौन सा है? ट्राई टू विजुअलाइज. इट्स अ कैपिटल आई मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल आईज. यानी मैं देखो, ये आई 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 है, फिर आई है, फिर आई. कैपिटल आई विच इज मेड अप ऑफ मेनी मेनी स्मॉल आईज. Each small I represents one of my attributes. Each small I represents one of my attributes. वो गुण हो गए या दोष होंगे, एट्रीब्यूट्स हैं. वो सब एट्रीब्यूट्स मेरी जो है, जिसे हमारी अध्यात्म में कहते हैं उपाधियां, मेरी सब उपाधियां जो है वो एक एक स्मॉल आई है. मेरे सब रोल्स स्मॉल आई है, मेरे सब एट्रीब्यूट स्मॉल आई है, और इन सब का मिला के मेरा कैपिटल आई हो गया. तो अब देखेंगे कि मुझे इस फील्ड में इस समय पे सेटबैक आ गया. तो व्हाट गॉट डिस्टर्ब? वन स्मॉल आई इन द होल फॉर्मेशन गॉट डिस्टर्ब्ड. ठीक है. और
उसके ऊपर मुझे कुछ करना है. I have to mend it. I have to look at it. I have to repair it. Right? हाँ I have to make हाँ it stronger. हाँ Fantastic. हाँ कभी कभी ऐसे होगा कि एक ही परिस्थिति में मेरे 4-5 स्मॉल आई फ्रॉम द फॉर्मेशन विल गेट अफेक्टेड. अभी देखिए कि ये फॉर्मेशन में से 4-5 स्मॉल आई अफेक्ट हो गए हैं. सो विच मीन्स कि मुझे ये 4-5-6 छोटे आई जो फॉर्मेशन का भाग है उनके ऊपर मुझे काम करना है. राइट? बट मैं खुद को स्मॉल आई नहीं बोल रहा हूं. हाँ, और मैंने समझो वो 5 स्मॉल आई जो फॉर्मेशन का भाग थे उनके ऊपर मैंने काम किया और उनको अच्छा किया. हाँ, तो मैं कैपिटल आई नहीं बन गया. मैं वही हूँ. राइट? ये अगर हम ध्यान में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हेल्दी सेल्फ एक्सेप्टेंस. अभी देखिए मैंने आपको मॉडल दिया. एक बढ़िया मॉडल है, अभी मैं उसको विजुअलाइज भी कर पा रही हूँ. हाँ, सो एक बाजू आपका सेंटर है. हाँ. एक बाजू आपकी पेरिफेरी, आपका रोलर कोस्टर ही है वो. हाँ, और अगर आप ये दोनों के ऊपर काम करते ना, एक तो आपके सेंटर के ऊपर और आपके रेडियस के ऊपर, हाँ. ये दोनों के ऊपर आप काम करते हैं अगर, तो आप देखिए तो आपके रोलर कोस्टर मध्ये तुम्ही किती पण तिकडे खुर्च्या टाका ना, तिथे किती पण पाळणे भरा ना तुम्ही, मग तुम्ही जेलसी भरा, कॉम्पिटिशन भरा, डेडलाईन भरा, काही पण भरा तिकडे, तिकडे भरतायत. आणि आपण काय बघतो, वी कीप ऑन काउंटिंग, त्याच्यामध्ये पाळणे किती झाली, 25 पाळणे झाली. अरे पण ते एकाच रोलर कोस्टरचा भाग आहेत ना. वो अलग अलग थोडी है, इसको पहचानो. अलग अलग थोडी आहे, ते एकाच त्रिज्येमध्ये धावणार आहे. आपण काय पाळणे टाकत जातो फक्त. म्हणजे 20व्या वर्षी माझ्या रोलर कोस्टर मध्ये 5 पाळणे होते, 50व्या वर्षी 25 झाले. मी घूमतो आहे तसाच. और फिर मुझे ये देखना है कि ये रोलर कोस्टर में बैठने का चॉइस मेरे में है, या मुझे रोलर कोस्टर में नहीं बैठना है, त्याच्यात नाही बसायचं. मला काय करायचंय, मला त्रिज्येवरती काम करत आय हॅव वॉन्ट टू कम एट द सेंटर, वेयर I will be at the center of my roller coaster. फिर रोलर कोस्टर को घूमने दो ना. हाँ, फिर क्या होगा, रेगुलेशन हमारे हाथ में होगा. फिर हम रोलर कोस्टर में कितने कुठल्या पाळण्यामध्ये कोणाला बसवायचं, किती काळ बसवायचं, आम्ही विचार करू त्याच्यावरती. हा, सो वी विल हॅव दॅट काइंड ऑफ अ फ्रीडम अँड लिबरेशन विथ दिस काइंड ऑफ अ मॉडेल. एंड दैट इज, if I discover this healthy self acceptance, उसमें क्या है देखिए, अगर मैं खुद को ना कैपिटल आई मेड अप ऑफ स्मॉल आईज करके देखता हूं, तो क्या होता है, मैं दूसरे को भी कैपिटल आई मेड अप ऑफ स्मॉल आईज ही देखता हूं. तो क्या हो गई, सहृदयता. सहृदयता दोनों जब मिलते हैं तो निर्माण हो जाती है सहृदयता, एम्पैथी. देखो, healthy self acceptance and empathy are so related to each other. Yes. ऐसे अगर आप beautiful find. हाँ, तो ये अगर आपके उस अभ्यासक्रम में आता है, it's important to give these kind of insights. Yes. Because ये insight, जैसे मैंने कहा, embedded learning में वो नहीं होगा, तो implanted learning में होना चाहिए. क्योंकि वो तभी कल्चर का एक भाग था. जी. हाँ, ऐसे नहीं कि तभी एम्पैथी बहुत बह रही थी, ऐसा नहीं, वो किसी भी कल्चर में नहीं होता है, लेकिन वो एम्बेडेड एजुकेशन का एक भाग तो जरूर थी. और वो पूरे कल्चर में बह रही थी. जैसे मैंने कहा आपको, आमचा तुकारामांचा अभंग आहे, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. एम्पैथी है ना, जे का रंजले गांजले. हाँ, अभी देखिए ये हमारी एम्बेडेड एजुकेशन था कल्चर का. तुकारामांचा अभंग म्हणजे काय, एम्बेडेड था वो. और वो जाकर वो पूरे नरसिंह मेहता के पास गया. कैसे गया, वैष्णव जन तो तेणे कहिए, पीड़ पराये जाने रे. बिल्कुल. हाँ, तो ये जो है वो एक्चुअली सेम एक को है कि नहीं. तो वो एम्बेडेड एजुकेशन कल्चर में था एम्पैथी का. फिर वो महाराष्ट्र से वो गुजरात गया. कैसे गया,
वो कैसे गया उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। नामदेव के पास से गया। नामदेव जो थे उन्होंने 12व्या 13व्या शतकामध्ये नामदेव हे महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेले, तिथून ते पंजाब पर्यंत गेले। तो गुजराती बोलियों में नामदेव ने रचना की। वो रचना का गुजरात की भक्ति परंपरा के ऊपर गया। इसके लिए नरसिंह मेहता वैष्णव जन तो लिखा। उसके बाद में तुकाराम आ गए, वो तो इसी परंपरा का भाग थे। सो सी लुक एट दैट कल्चरल आई मीन एम्बेडेड एजुकेशन जो है उसमें एम्पैथी का होना ये कैसे आता था। फिर तुकाराम में वो एम्पैथी है, तुकाराम के अभंगों में वो एम्पैथी है। आपको मजे की बात बताऊं कैसे होता है ये एम्पैथी की सहृदयता। सहृदय आदमी को सहृदय आदमी मिल जाता है। तुकारामांच्या 12 अभंगांचं रूपांतर गांधीजींनी केलं इंग्रजीमध्ये। गांधीजी को वो एम्पैथी छू गई। हाँ, तो गांधीजी ने अंग्रेजी में और मराठी सीख रहे थे। गांधीजी को मराठी समझता भी अच्छा था। तो गांधीजी ने 10 अभंगों का है, साइट पे आप देखिए की तुकारामो के अभंग का त्यांनी पण जो जे का रंजले गांजले घेतलाय गांधींनी अभंग, त्यांनी जे 12 इंग्रजी मध्ये ट्रांसलेट केले आहेत त्याच्यात। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताता हूँ। देखो एम्पैथी बहती है, एम्पैथी बहनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने 10 अभंगों का बंगाली रूप किया तुकाराम के। और वेरी इंटरेस्टिंगली जब ये सब भाषांतर की बात चल रही थी तो गांधी जी और टैगोर के कहने पर विश्व भारती में उस समय में नंदलाल बोस थे जी। उन्होंने तुकाराम के स्केचेस बनाए। हाँ, अभी इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि वो स्केचेस अगर आप देखेंगे वो उपलब्ध है तो आपको लगेगा कि तुकाराम सौराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का नहीं लगेगा। अच्छा। उसका अगर आप हुलिया वेशभूषा वो तुकाराम, हाँ, वो नंदलाल बोस को तुकाराम पहुंचे थे वाया सौराष्ट्र, वाया गांधी जी। तो उन्होंने जो तुकाराम देखे वो सौराष्ट्रियन ज्यादा थे और महाराष्ट्रियन कम थे। जी। But see, that is embedded empathy. That is how it flows from Maharashtra to Saurashtra, Gujarat to Bengal, back to Maharashtra. That is embedded education of empathy. अभी ये जो भक्ति मार्ग है, भक्ति की धारा जो है, जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स का बहुत एक मतलब उसका एक सेंट्रल लाइफलाइन बोल सकते। ऑल आर सारी रचनाएं ओडिसी में हम जो जयदेव की गीत गोविंद पे करते हैं, संत वाङ्मय, अष्टचाप कवि है, ये सारा उस भक्ति धारा और कैसे वो धारा एक दूसरे को जुड़ती चली गई। And that is why I give you this particular example since we are talking to a lot of artists. Yes. We discover the embedded empathic education in the parampara, in the culture. Yes. और उसमें भी देखिए भक्ति में भी कैसे, देखिए भक्ति धारा जो है वो अगेन हेल्दी सेल्फ एक्सेप्टेंस से ही शुरुआत करती है। यानी कि पहले आपको वो रिश्ता है भगवान के साथ, जो आपकी इष्ट देवता है उसके साथ आपका एक रिश्ता है, वो शुरू कभी कभी हो जाता है आप खुद को स्मॉल आई देखते हैं। और आप उसको बिग कैपिटल आई करके देखते हैं, ऐसे वो शुरू हो जाता है। तो मैं छोटा हूं तो आप बहुत बड़े हैं करके भक्ति शुरू हो जाती है। करते करते भक्ति जो आ जाती है वो सख्य भक्ति तक आ जाती है। सख्य भक्ति है जहां कैपिटल आई मेड अप ऑफ स्मॉल आईज ये भक्त है और कैपिटल आई मेड अप ऑफ स्मॉल आईज ये देव है। तो वो सख्य भक्ति पे आ जाते हैं। फिर सख्य भक्ति से लेकर वो समीपता, सायुज्यता करके, वो सायुज्यता जब भक्ति हो जाती है तो एकत्व आ जाता है। बराबर। तो जैसे कहते हैं दास्य भक्ति से सख्य भक्ति जी, और सख्य भक्ति से फिर सायुज्यता और समीपता और सायुज्यता, ये जो भक्ति धारा है आप देख रहे हैं बराबर कि आप रोलर कोस्टर के वो इससे धीरे धीरे सेंटर की तरफ आ रहे हैं। और जब आपको सायुज्यता मिली वो सेंटर है। जहां पे भक्त और भगवान ये एक हो गए वो सायुज्यता है। तब तक समीपता है।
सायुज्यता हो गई, आपने सेंटर हिट किया, टक। हाँ, ये आपकी साम्यावस्था है। और जो भावावस्था से आई हुई साम्यावस्था है, हाँ, उसे ही हम नाद ब्रह्म, सूर ब्रह्म, ये सब ब्रह्म की कल्पना की है। सो एवरी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, उसके पास ये दिया हुआ वर है, वो वर है कि खुद का सेंटर ढूंढो। यस, खुद का सेंटर ढूंढो। ये अब हमारे कम्युनिटी का स्लोगन होना चाहिए कि खुद ये का आपकी सेंटर ढूंढो और सेंटर ढूंढो। पेरिफेरीज में ना जाए। हाँ, और फिर क्या होगी, पेरिफेरी रहेगी, but then पेरिफेरीज you will be at the center. यस You will not sit in the roller coaster. यस, आप उसमें नहीं रहेंगे, आप वहां रहेंगे की जिथं तो घट्ट बसलेला आहे. हाँ की तिथून तो, see that point is a स्थिर. तो हाँ, जो पॉइंट आहे ना, तो स्थिर आहे, तो नाही हलत आहे. बाकी सगळे हलतायत. आपल्याला हळूहळू हलण्याकडून असे जर आपण आतमध्ये आलो, इवन one movement of that experience can change your perspective. यस, And then coming back to your point, Parvati, आपके भौतिक और भावनिक, your emotional goals and your material goals, उनका अपना एक बैलेंस आपको मिल जाएगा. जो बैलेंस मिलना हर कलाकार के लिए बहुत आवश्यक है. हर कलाकार के लिए मैं देखता हूँ, देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ कि परफॉर्मर है, एक बाजू उसकी जीवन शैली उसके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है, दूसरे बाजू उसकी खुद की डेवलपमेंट भी उसके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है. तो जब आजकल के इन दिनों में परफॉर्मेंस हो ही नहीं रहे हैं, तो एक बाजू एक भौतिक चुनौती है और दूसरे बाजू एक भावनिक चुनौती है. और भौतिक और भावनिक दोनों चुनौतियां हैं. It's a material challenge, it's an emotional challenge, right? But that is why what we are talking about center makes more sense. Yes. कि Yes. इसमें अगर हम लोग रूटेडनेस खुद का ढूंढते हैं जी, तो वो ढूंढना है हमें, बाद में उसका फायदा हम सबको हो सकता है. हमारी परंपरा में बहुत अच्छा कहा है कि पहले आपको विद्ध होना चाहिए. यू हैव टू बी वुंडेड फर्स्ट. तो हमें कोविड ने क्या दिया, कोविड ने हमको वुंडेड बनाया. हम विद्ध हो गए. अब हम विद्ध हो गए और खुद की तलाश शुरू की. खुद के परफॉर्मेंस के साथ साथ हम खुद के लिए परफॉर्म कर रहे हैं अभी, जब तक दूसरों के लिए नहीं कर रहे. लेकिन हर परफॉर्मर में सेंटर की तरफ जाने की कोशिश लगातार रखेंगे. आमचा रियाज असेल, आमचा सा लावलेला असेल, मी घुंगरू बांधताना नृत्यामध्ये असेल तर मी तबलावरती माझी चाट जी असेल ती चाट वाजवताना प्रत्येक वेळेला आई एम गोइंग टुवर्ड्स माय सेंटर, आई एम गोइंग टुवर्ड्स माय सेंटर थ्रू माय परफॉर्मेंस. ये इस तरीके का विचार अगर हमारा रहेगा जी, तो हम साधक बन गए. तो हम साधक बन गए. और साधक जब बन जाएंगे तो हमें सिद्ध तो हम पूरे के पूरे नहीं बनेंगे, लेकिन सिद्धि का क्षण हमें मिल सकता है. और वो एक तलाश हमेशा रहनी चाहिए. मैं इस बात को भी एक मानती हूँ कि हालांकि आजकल क्या हो गया है कि आई थिंक हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी तरह से आंसरेबल भी बनना पड़ता है. देयर आर फनी क्वेश्चंस दैट आर रेज्ड टू एजुकेटर्स, टू आर्टिस्ट, टू गुरुज. सबसे फनी तो यही है कि कितने दिन में इसको आ जाएगा, कथक कितने दिन में आ जाएगा, ओडिसी कितने दिन में. बहरहाल वो प्रश्न इतने महत्वपूर्ण नहीं है. लेकिन अब जो एक नई परिस्थिति आ गई है कि वी आर ऑल इन द लॉकडाउन एंड अभी डिजिटल माध्यम हमारे सामने आया है. पार्वती, मैं एक बात आपको बताता हूँ जी. आपने जो कहा ना कि कितने दिन में आ जाएगा जी. हाँ, कि हमें क्या चाहिए मालूम है, हमें डेट्स चाहिए होती है. यानी 30 जून तक, हाँ, ये कोरोना के कब तक नीचे हो जाएंगे, सितंबर तक, अक्टूबर तक. और ये वैसा ही सवाल है कि कथक कब आ जाएगा और कोरोना के पेशेंट कब कम हो जाएंगे. सो ये सवाल तो हम कर सकते हैं, बट व्हाट इज द पॉइंट, यू नो, लेट अस फोकस ऑन डेज रादर देन डेट्स. हमारी पूरी जिंदगी में हमें कोरोना से अगर हम ये एक बात सीखते हैं
कि लेट अस फोकस ऑन डेज रादर देन डेट्स। डेज यानी क्या, ये मेरा प्रिपरेशन का डे कब आ जाएगा, मेरा खुद के सेल्फ एक्सेप्टेंस का डे मैं कैसे लाऊंगा, मेरे परफॉर्मेंस के में सहृदयता लाने की कोशिश में कौन से दिन से और कौन सा वो दिन होगा। Let's talk about days, not about dates. Yes, yes. And if we do that, then possibly इससे हम लोग हमारी परफॉर्मेंस को एक अगली लेवल पे ले जाए। हाँ, यानी इसके बाद में जो हमारी परफॉर्मेंस होगी वो इतनी ज्यादा रिफ्लेक्टिव होंगी, सही बात, ज्यादा उनमें हमारी आत्मा की ताकत होगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कुमार गंधर्व जी का। जी। मैं पूरे एग्जाम्पल आपको आज कला सृष्टि से ही देता हूँ। तो कुमार गंधर्व जी को ही हैड पल्मोनरी प्रॉब्लम, लंग्स के प्रॉब्लम थे उनको, और उस जमाने में उतनी तो ये भी नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, ट्रीटमेंट्स नहीं थी, तो उनको वॉइस रेस्ट बोला गया। बहुत सारे महीनों तक कुमार जी को वॉइस रेस्ट दी गई। अभी जैसे आप इतने गाने वाले हो, और वो तो उनके टीन एज से, कुमार गंधर्व थे तो टीन एज से ही प्रोडिजियस गायक थे, कलाकार थे, और उनको कहा जाता है कि आपको अभी गाना ही नहीं है, आपको वॉइस रेस्ट, यानी क्या लॉकडाउन। कुमार जी के लिए वो बात लॉकडाउन से कम थी क्या? वो लॉकडाउन था एक तरीके से उनके पूरे जीवन के लिए। फिर कुछ समय बीत गया, ये हो गया, फिर उनको कहा डॉक्टर लोगों ने कि अभी ठीक है, अभी आप थोड़ा थोड़ा गा सकते। तो पहले एक खासगी महफिल होती जिसमें वो गाने के लिए बहुत समय के बाद गाने के लिए बैठे, और जब बैठे उन्होंने सा लगाया, और लोगों ने कहा अरे क्या बात है, लगा ही नहीं कि आपने इतने कुछ 10, 12, 14, 16 जो भी कुछ महीने हो गए, समय बीत गए, उसमें आपने गाया ही नहीं है, ये समझ लेना मुश्किल है। तो कुमार जी ने बहुत सिंपल बात कही है जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि वो लोगों ने मुझे कहा था कि आप बाहर मत गाओ, उन्होंने मुझे थोड़ी ये कहा था कि आप अंदर मत गाओ। वाह, आई थिंक दैट्स अ प्रोफाउंड स्टेटमेंट। यस। अभी ये जो उन्होंने मुझे कहा था कि आप अंदर, वो अंदर गाते गए जी। तो कोरोना हमारा बाहर का गाना बंद कर सकता है, कोरोना हमारा अंदर का गाना नहीं बंद कर सकता। सही बात है। मैं अभी यही बात को देख रही हूँ, और मैं तो इसको इस तरह से ही एक्सेप्ट कर रही हूँ, और हमारी कम्युनिटी को भी यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये समय है रिफ्लेक्शन का, इंट्रोस्पेक्शन, अपना चिंतन, रियाज। अगर रियाज करने की स्पेस नहीं है तो भी जैसे आपने कहा कि अंदर का गाना, उस तरह से हमारा मन, दिमाग वो तो नृत्यरत रहता है हमेशा, वो सोचता रहता है। इवोल्यूशन, कंटेंट क्रिएशन, और ये जो चिंतन के बाद का जो नाच है, शायद हम समाज को वापस वो दे सके, हमारे सचमुच के सहृदय तैयार कर सके। ये तो एक बात हो गई। और आपने जब हमारी बात हुई ना डेट्स की और डेज की, आपने कहा, तो मुझे एक ध्यान आया कि मैं हमेशा क्या बोलती हूँ जब कोई पूछता है ना कि आप कितने साल से सीखते हो, या कोई शिष्य मेरे पास भी अगर है और कितने सालों से, तो मैं कहती हूँ कि मैं साल नहीं गिनती, मैं सांस गिनती हूँ। वाह, कितनी सांसें आपने दी है सीखने को, रियाज करने को, तो साल क्यों गिनना? और नॉर्मली हर एक जन अपने प्रोफाइल में लिखता है हम इतने साल से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो सालों में कितनी सांसें थी जो आपने नाच को दी, सीखने को दी, साधना को दी। तो अभी मैं काफी सालों से यही बात करती हूँ कि मैं तो साल नहीं गिनती, मैं सांसें गिनती हूँ। और तो हम ऐसा कहेंगे पार्वती कि बहुत सांसों से आप बात कर रही हो, ये बहुत सांसों से बात कर रही हो, सालों से नहीं। तो नहीं, ये हमारा जो डेट्स के साथ जो हमारा एक ऑब्सेशन जुड़ा हुआ है ना, एक इंटरेस्टिंग बात है, एकदम आउट ऑफ द वे, लेकिन बताता हूँ आपको। जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं हमारे फ्रेंड्स, तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, EDD बोलते हैं कि ये लड़का या लड़की का जन्म कब होने वाला, तो उसका एक ये होता है कि हाँ आता 9 महीने 9 दिवस इतने वीक्स, ये वो टर्म, और द होल फैमिली इज नॉट लुकिंग एट द कैलेंडर, दे आर लुकिंग एट द डेट। ओके,
there is only one person who is looking at the day, and that is the infant. जो जो बच्चा बाहर आने वाला है ना, उसको डेट मालूम नहीं है, उसको डे मालूम है। हाँ। और वो सही समय पे आता है। हाँ। शायद वो निसर्ग का समय है। हाँ। वो सही समय पे आता है। शायद आपके कैलेंडर में कौन सी भी डेट हो, तो निसर्ग आपको डे देता है, डेट हाँ। नहीं। जी। डेट हमने बनाई और जी। उसको तो हमारी डेट्स मालूम नहीं ना, वो छोटे बच्चे को। बिल्कुल वो बिल्कुल। अपने डे पर आ जाता है। जी। तो एक सवाल मैं जो आपके सामने रखना चाहती थी, दिस इज रिलेटेड टू द न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल जो है वो है ऑनलाइन, और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हम लोग हमारी यूनिवर्सिटी की मीटिंग्स ऑनलाइन कर रहे हैं। The funnier thing is, I did a couple of online meetings with my own staff, and when I saw their background, तो हमारी एक डांस की फोटोग्राफ पीछे थी दीवार पे। तो मैंने हमारे कलीग को पूछा कि आप कहाँ पे हो अभी? तो कहते हैं मैं महागामी में ही हूँ। तो अब ऐसे हो गया कि हम महागामी में भी मीटिंग कभी कभी करते हैं। तो आई डिस्कवर दैट एक्चुअली that person is also in Mahagami but in some other room, and so we are working in that ways. वो एक उसकी अपनी कुछ अच्छी बातें भी हैं कि we save time and more precise and more to the point work, वो सब भी है। लेकिन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है डेफिनेटली, बिकॉज म्यूजिक कैन नॉट बी टॉट ऑनलाइन। हाउ विल यू कैन नॉट गेट दैट एक्सपीरियंस, एंड आत्मा से आत्मा का संवाद, शरीर को समझने का, देखने का, नुएंसेस, बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल इसके बारे में जितना भी गिनते जाए ये समस्याएं तो हैं ही। हमारी कम्युनिटी ने एक ये चीज अच्छी की है कि दे हैव एक्सेप्टेड जो भी कुछ अभी फिलहाल हमारा न्यू नॉर्मल है, लेट अस एक्सेप्ट, बिकॉज हम इसमें एटलीस्ट सबको एंगेज रखें, जितना मीनिंगफुल काम कर सकते हैं कोशिश करें, एंड कैन वी लुक एट कह सकते हैं कि बेटर नॉर्मल इन द फ्यूचर। तो मेरे ख्याल से हम समापन की तरफ बढ़ेंगे अभी, और मैं जरूर चाहूंगी कि हम एक और सत्र आपके साथ करें जिसमें बहुत सारी और रोचक विषय पर हम बात कर पाएंगे आपके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। फिलहाल ये ऑनलाइन टीचिंग को लेकर एक हम लोग के ऑब्जर्वेशंस जो चल रहे हैं, आई थिंक स्कूल्स भी इस तरह से काम करने लगे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट अपने अपने तरह से कोशिश तो कर रहे हैं। And it's not too satisfying, but yes, this has also brought newer possibilities. जैसे मैंने फिलहाल एक ऑनलाइन क्लास, एक वर्कशॉप की, तो मैंने देखा कि लगभग अलग अलग कॉन्टिनेंट से, अलग अलग देशों से लोग मेरे साथ शामिल हो गए क्लास में। तो वो जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस थे वो सरपास हो गए, वो डिसॉल्व हो गए। ये सारी बातें तो हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली हम लोगों को एक जो फीडबैक मिलता जा रहा है, एक तो ये है कि स्टूडेंट्स आर नाउ इंट्रोड्यूस्ड टू अ न्यू जोन। दे आर मीटिंग देयर टीचर थ्रू अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, और वो उससे जुड़ी हुई जो एक अलूफनेस है, एक सीक्रेसी है, या दे आर डिवॉइड ऑफ ह्यूमन इंटरफेस, और एक जो प्राणिक एक्सचेंज अगर हम बोलते हैं कि टीचर स्टूडेंट का जो एक प्राणिक एक्सचेंज होता है, बराबर, उस तरह का जो एक मनोवैज्ञानिक भी है, इमोशनल भी है, आर्टिस्टिक है, इंस्पायरिंग है, फिलोसॉफिकल भी है। तो ये सारी बातें तो काफी हद तक संभव नहीं हो पाती हैं। और क्या अगर ये ऐसा होता रहा तो क्या ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट या एक अलग तरह का जो एक सीक्रेटिव स्वभाव है, क्या इसको ट्रिगर करते हुए कैन देयर बी थिंग्स दैट वी शुड बी केयरफुल अबाउट? एंड जैसे हमने शुरुआत की इम्यूनिटी के बारे में करते हुए, सो इज देयर अ वे टू क्रिएट एन इम्यूनिटी एंड क्रिएट एन इम्यून सिस्टम टुवर्ड्स these expected प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स बोले, या साइकोलॉजिकल अलग अलग तरह की जो टेंडेंसीज हैं? सो इज देयर अ वे टू एड्रेस दिस? Because I think everyone needs to be aware of this, and we need to also educate ourselves towards that.
इसमें हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो नेक्स्ट नॉर्मल है हमारा, जी, तो इसमें ना नेक्स्ट नॉर्मल में ये बात होने ही वाली है कि नई नई चीजें आने वाली है और जाने वाली है. हाँ, And currently we are overusing the screen. I agree with you because there is no other way. Hmm? But हाँ, I'm sure that things are not going to remain the same in future. Now what near ये मैं नहीं पूछता हूँ, in future. हाँ, हाँ, क्योंकि हम लोग डेट्स की जो बात नहीं हम कर डेट्स रहे. की बात नहीं कर रहे हाँ हैं, हाँ हाँ, करेक्ट, तो सासों की बात कर रहे हैं. जी, So so what is important is this is not going to remain forever, but as you are rightly pointing out, what are the lessons? The lessons are, you know, we have found the importance of direct communication. yeah, We have found the strengths of virtual communication. yes, It's not that virtual communication doesn't have strengths. hmm, So we will have to kind of find out what is the right balance between hmm, direct communication and virtual communication. hmm, So that is something that we will have to find out कि हमें क्या करना चाहिए आगे जाकर, so that we can get a better balance out of it. That is point number one. Point number two है कि हम लोगों को, मुझे और आपको सबको एक खुद को ट्रेनिंग देना चाहिए. और hmm, वो ट्रेनिंग क्या है? दो तीन तरीके के ट्रेनिंग है. एक है स्क्रीन एटिकेट्स. हाँ, अभी हाँ, हमने पहले स्क्रीन एटिकेट्स नहीं सीखे थे. हाँ, अभी हमें स्क्रीन एटिकेट सीखने पड़ते हैं. ये हाँ, मीटिंग जब चलती है या हमारा शूटिंग चल रहा है तभी स्क्रीन एटिकेट्स, क्योंकि क्या है, हम लोग घर में रहते हैं, घर में रहते हैं तो इनफॉर्मल रहते हैं, तो हाँ, एटिकेट्स होती ही नहीं है. सो so we will have to learn about screen etiquettes. ये न्यू लर्निंग है हमारा. हाँ, दूसरा एक लर्निंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए है ये, कि हाउ विल यू इमोट ऑन स्क्रीन. क्योंकि अगर आप इमोशंस नहीं देते हैं स्क्रीन पे तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो exactly, और ऐसा यू नो ड्राई बन जाता है. सो हाउ टू इमोट टू द स्क्रीन, एंड वी आर ट्रेन टू इमोट टू पीपल, नॉट टू स्क्रीन. So so that is something, unless you are, you know, trained cinema actors who are trained to emote in front of camera, but most of us are not. हाँ, So so वो एक चैलेंज है ना. देखिए ना, ये चैलेंजेस जो है इसमें अपॉर्चुनिटीज भी है कि हम लोग किस तरीके से एक नया बैलेंस, ऑफलाइन ऑनलाइन लर्निंग, डायरेक्ट हाँ, एंड वर्चुअल लर्निंग, हम yes, लोग शायद बॉन्डिंग की जो महत्ता है हाँ, उसको और अच्छे से जान जाएंगे जब हम मिलेंगे. आई मीन डायरेक्टली टीचिंग हमारा शुरू होगा, डायरेक्टली लर्निंग शुरू होगा, जी, तो we will have learned a good lesson कि अरे what is the important. हर पल हमें जो डायरेक्टली मिल रहा है वो हर पल का इस्तेमाल हम लर्निंग के लिए कैसे करेंगे, ये शायद हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. प्री कोविड क्या था, सगळं डायरेक्टच होतं, काय नाही आजचं उद्या करू, उद्याचं परवा करू. हाँ, हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते होंगे. अभी जब मिलेंगे कि यार वापस नया कुछ हो जाएगा तो उसके बीच में हम लोग सीख लेते. अभी चांस मिला है डायरेक्ट सीखने का, सीख लेते. वी विल नो द वैल्यू of direct learning methods also, right? And which could help us to strike a new balance. Okay, Parvati? yes. So I think this was really, this is, I think, brought newer insights. And I think we'll all think about the roller coaster that you told us about, and the big eye, which is made of small, many small eyes. I think we will continue reflecting, all of us, and I do hope to meet you again with the second session of the talk, because there are many things that are in our mind and we would really want you to give your insights, share your insights and your thoughts on that. To sum up, I think I would also, Parvati, before you sum up, one information for the benefit of the viewers who are watching this and yeah, will watch it further on the Facebook. yeah, We have a YouTube channel called Avahan IPH. yeah, So this is a channel which is dedicated to mental health by IPH, Institute for Psychological Health.
And we have a lot of audio visual files on our channel, which are very important for emotional hygiene part that we were talking about. There is one file which is called as Channelize Your Extra Tension, which is in Marathi as well as in English. There is a file on stress management that is called Sayankalchi Samvad Mala, actually 16 episodes of 30 minutes audio file. We have a file called Vedanta Vichar and Vyaktitva Vikas, so which is an audio visual file. Every week we are uploading one episode, which I am doing. So 19 episodes are uploaded. We have emotional hygiene films made on this Corona time, Marathi as well as English. Wow. We have more than 200 inspiring interviews of people from different walks of life. So we have a lot of material. We have short films. So all of you can definitely see those films or features on our YouTube channel, Avahan IPH. And Parvati, thank you so much for inviting me. Thank you so much. And I'm so happy. I am aware of your work, your beautiful work, and the kind of socially relevant work that you are doing with so many, with a 360-degree vision. And I'm also happy to have been associated with IPH since a long time. In fact, वो कैसे होता है ना, वो एक ऋण होता है. तो मैं IPH में एज अ गेस्ट स्पीकर आई थी 2-3 बार मेरे ख्याल से, और मैं हमेशा चाहती थी कि we need to have, we should have sessions on psychology, on emotional immunity and wellness and so many things. I think it's very important for us to update ourselves and educate ourselves. And we will continue doing that, because that is where we can also help each other. And if there is anyone who is dealing with some kind of crisis, especially the youngsters and learners, we should at least know what are the indications, what are the indicators, and then how it is to be addressed in the most sensitive manner. So I do hope to have yet another session with you very soon. Let us work on that. And before summing up and thanking you, let me also share one of the releases of UNESCO, which says that a world without culture is a world without a future. We need culture and culture needs us. So this is simply a message that I wanted to share with my artist community, who are in great distress. Some of them are, especially the younger people, younger artists, who आपने जैसे कहा ना कि date और days के बीच में जो हमारा confusion चल रहा है या दुविधा चल रही है. And of course there are many who are freelancers, who are without work. But there are many more who are without work. There are many who are without homes. There are many who are in great pain and great difficulty. So together, I think as a community, we have to stand for each other. We have to help each other. And let us continue this dialogue and this kind of reflection. So on behalf of Mahagami Gurukul, Mahatma Gandhi Mission, and MGM University, let me thank Dr. Anand Nadkarni. Thank you very much for your valuable time. And I do hope to come back with you for the next session. Thank you. Namaskar.